आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? जी सर, क्लियर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी एंड ईआरपी, एंड देन लेटर ऑन वी विल स्टार्ट with the practical things. So before starting SAP, first we will understand about the ERP. What actually ERP is, how the ERP functional. So ERP means Enterprise Resource Planning, जी। where we use the ERP for operations, like development purpose से हम use करते हैं, sales and purchase related, marketing and product planning. So these are the basic things which we always use ERP software. Like enterprise is nothing but it is a huge organization. That means हम एक छोटी सी इंडस्ट्रीज को के लिए हम enterprises प्रेफर नहीं कर सकते. So enterprises are a huge organization, means that the organization which is registered under the Companies Act, right? जी। Resources is nothing but it is related to your business, like material, manpower, machinery, money and maintenance. These all are the things related to your business resource. Whereas the planning is nothing but it is the proper utilization of resources. यानी कि आपके resources का किस तरीके से proper utilize करना है, that is called planning. So it is complete enterprise resource planning. Let us understand this through the business process, how the ERP will deals. Like suppose if a customer wants to purchase some material from your company, they will have to contact your sales team. Firstly, they will inquire about the products, and then they will contact to the sales team. Sales team will send the quotation to the customer, and then customer will evaluate the quotation, and after evaluation they will place an order, right? जी। So in customer point of view it is a purchase order, and it is sales point of view it is sales order. And then after the material will be delivered, if it is required e-way bill, and then billing process will be there. So like sales invoicing karna and then purchase billing karna. Finally the customer will pay the amount, and it will transfer to the accounts department. Now let us understand these ERP things with the departmental level, how this ERP will work on a department level. Like SD means sales and distribution department, MM material management department, FI finance department, HR human resource department, PP production planning department, QM quality management, PM plant management. Inventory, which is required to maintain the inventory records, that is inventory department. So these are the basic department which involves in ERP. So if a customer wants to purchase some material from this company, how these all departments will work? So very first, suppose customer wants to purchase, they will have to contact sales and distribution. Sales and distribution
Customer will have to place an PO to sales and distribution. If the same material is available with sales and distribution, they will immediately respond to the customer and transfer the material. If the material is not available in sales and distribution, the information will be shared to the inventory department to ask whether that types of product is available in stocks or not. If the stock is not available in inventories, then it is required to manufacture. Then inventory department will ask the information to production planning department if this kind of a product is available in production. If it is not, then production planning will again ask the information required to that raw materials for production of that particular goods. If the raw material is not available in inventory department, then inventory department will ask the information to material management department, and then material management basically find out the vendor for that raw material, and then vendor will deliver the products to the material management, and then it will again transfer to inventory department, and then inventory department will again transfer to production planning, and vendor will send a one invoice, and then FI will involve because finance department will have to pay the payment. So whatever the billing will be raised by the vendor will have to clear. And then production planning will transfer same raw material to quality management for inspection of the quality of that raw material. And then again it will be transferred to plant management for the production. So these three departments are interrelated information for a manufacturing of goods. Once the material will be finished uh, at the stage of manufacturing, then it will be transferred to inventory, and then inventory will transfer the material to sales and distribution, and then sales and distribution will transfer the material to customer, and then again finance department will involve for raising the invoice, sales invoice, and then customer will have to pay the amount to the finance department, and finance is also included to the HR team. An HR department is included in every department because in all departments one employee is working. So who will finalize the recruitment of employee? That HR will finalize. So HR is related with all departments. So hope you understand this root of ERP on the departmental level. Yes, sir. Let us move ahead. Understand about the characteristics of ERP. An integrated system that operates in a real time or next real time without relying periodic updates. That means this ERP is working on a real time integration basis. Means whenever you want your reports, it will be integrated and you can check it. A common database which supports all application. That means a single database will support all application for your reporting perspective. Like suppose you want to integrate your tally system through the ACP system. You want to integrate your ACP with other ERP system. So you can also do the same. A constant look and feel throughout each module. That means you have to make a constant look on each of the modules, whatever that module has been developed by the ERP system, because each of the module has their own functionality and there has own features. So you have to understand very much clear about that module so that you can work with that. Installation of system without elaborate application data integration be informed technology. That means IT department will involve for the installation of this ERP system.
For development and for installation, that IT department will involve. For a development, again it is required one ERP system. Now let us understand the advantages of ERP. It is design engineer, how the best make the product. That means how a product can be a best for your work requirement. So it is required basically the design engineering. Centralized system provides the strong integration between the different business and functional area. That means it is a centralized system you can access from anywhere, and whether it is related to your functional area or whether it is related to the different business, this centralized system can be accessed from anywhere. It provide correct information on a time take the business decision. That means if you get the information on a real time, then you can take the business decision on a right time. On time delivery and customer satisfaction. Order tracking from acceptance through fulfillment. That means order to cash. There is a cycle in SAP that is O to C and P to C. The revenue cycle from invoice through cash receipts. That means you can understand, suppose in these days, when we purchase some material from e-commerce websites, whenever we will place an order, that website will immediately respond to you with the message that your order has received successfully. Once the material will be under shipment, then again you will get the message. So whatever the movement of the goods, you will time to time notify by the message. Yes, So sir. so this is the system which ERP function over there. Mm. Managing interdependency of complex bill of materials, tracking the three-way match between the purchase order, what was the order, inventory receipt, what inventory is actually received, and what arrived, means what actually material is arrived in your books of account, and costing, what the vendor invoiced. मीन्स देयर इज अ Mm. थ्री स्टेप फॉर ट्रैकिंग. दैट मीन्स आपने कितने का मटेरियल ऑर्डर किया. ठीक है. Mm. मटेरियल ऑर्डर करने के बाद आपके पास जो मटेरियल रिसीट हुआ, दैट मीन्स आप चालान उसको बोलते हो. चालान के टाइम में आपके पास मटेरियल एक्चुअली कितना आया. एट द टाइम ऑफ चालान प्रोसेस अगर आपको कुछ लगा कि इफ द मटेरियल इज डिफेक्टिव, if the material is bad quality, then what you will do, you will immediately reject that material. So what invoice receipt, what costing, right, and what arrived. Because invoicing is after invoicing received, it might be possible some material is also in bad quality and you return that material. So that is called a debit Mm. note process. Ji. So on every level of stage, how this tracking will work. So it is a very simple concept that you will receive some notification on your mobile on every level of stage. The accounting of these all task tracking to the revenue, cost, and profit on a granular level. That means on each of the stages, your revenue will reflect, your costing will reflect, and your profit will also reflect. Mm. So once the ERP will work on that functionalities, these all will be automatically function on that. Let us understand some ERP packages like JD Edwards. So JD Edwards is famous for account software. PeopleSoft is famous for HR. Siebel is famous for CRM. Oracle is famous for finance.
whereas the SAP is famous for all modules, because your one SAP module will cover these all packages. जी. Now let us understand some common ERP maps. ERP means more work, more procedures. Obviously, because ERP has their own systems which define their hierarchies, so you have to work with that level. And whatever the customization required, you can, but there is a process, there is a work. So ERP will make many employee redundant and jobless, obviously, because ERP के अंदर बहुत सारे फंक्शंस फीचर्स ऐसे हैं जो आपके एक क्लिक करने से सारे फंक्शनैलिटी सारी एंट्रीज पास हो जाती है. Mm. So obviously it will create jobless. ERP is the sole responsibility of the management. यानी कि ERP के थ्रू एक मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉपर लिया जा सकता है. ERP is for manager and decision makers. Obviously, through the ERP system, managers can take the decisions, and whatever the decision has been taken, that can be managed also. ERP is for manufacturing organization. Yes, it is also for whatever the raw material is required, whatever the consumption of whatever Mm. production. So on each of the level stays, the ERP can function on that. ERP is for ERP implementation team, obviously, because there is some hierarchy for the implementation team, whatever the development required, whatever the customization required. Because in SAP, almost reporting layer is already given in a standard format. But if some of the company wants their reporting, then that can also be possible through the ABAP language, advanced programming language, which will be the part of programming for changing of reports. Mm. ERP slow down the organization. Yes, sometimes you might have heard the server down. So at that time, your business can be slowed down. If the server down, then the ERP will not function. जी. Then then your organization can also be slowed down. ERP is impress customers. Obviously, through the ERP system, your customer can impress, because on each of the level stage, the customer will get some messages, some involvements. So that customer will impress with this ERP system. ERP packages will take care of everything. That means your ERP software can take all the labels, all the stages of working where you want. So it will take everything. One ERP packages will suit for everybody. Yes, because one ERP can be implemented by the every business. ERP is very expensive. Yes, obviously, because normal business cannot be afford that much of expenses, and that much of renewal charges. So always this will be preferred for a huge organization uh, which turnover is more than 100 crores. So that can be preferred. If below 100 crores, that can also be implemented, but that is only depend, the cost will include it. Mm. Organization can succeed without ERP. Obviously, suppose if an organization do not wants to maintain the ERP system, and they have their own system, so uh, this is not the mandatory that if the ERP will not there, your business will not grow. So Mhm. it doesn't mean. It is only the mean that your functions and then your work procedure will be in a proper format.
Now come to the point of ACP. So ACP stand for System Application and Product in Data Processing. ACP company called ACP AZ Limited. It is a German based, started in 1972. It is an ERP, enterprise resource planning software, started by 5 IBM's engineer in 1970. In 1972, ACP R/2 system has been launched. Later, 20 years release ACP R/3 system as a client and client server software in 1999. Earlier, it was R/2 system. That means the software was required for installation of two systems. One is for application and one is for the database. Now it is R/3 system, so it is required three systems. Where R stand for real time uh, and new dimension product based on the NetWeaver. That means ACP has so many types of new dimensions NetWeaver platform like HANA, WebNet. So these are the tools which ACP provides to connect with the web programs. In 1999, ACP AZ Limited was the third largest independent software vendor in the world. That means uh, the ACP will work so many things on an automatic level. So other software has not that types of features and functionality. So that is the reason ACP is different from other software. Now ACP products. So ACP Business Suite, most extensive functionalities. ACP Business all in one, uh, partly standardized. ACP Business by Design, specialized business one for ONGC, and business one small companies having maximum 200 employees. So these are the ACP products which you can buy and you can install in your company and do the work. Let us understand what is ACP R/2. Mainframe, R stand for real time, 2 stand for 2 tier, language ABAP 4 is used, and advanced business application programming is also used. In R/2 system, it is required two system. One is for presentation layer, second is for application layer. Whereas R/3 system required three system. One is for client server, R stand for real time, 3 tiers, language ABAP 4 is used, and it is a fourth generation. One is for presentation layer, second is for application layer, and third is for database layer. So in R/2 system, earlier application layer and database layer was installed in a single system. Only presentation layer was separate. But now in R/3 system, it is required three system. One is for application layer, second is for database layer, and third is for presentation layer. Modules in SAP R/3. So very first is FICO, that is finance controlling, SD sales and distribution, MM material management, PP production planning, QM quality management, WM warehouse management, logistic execution, human resource, project systems, environment and health safety,
PLM, product cycle management. So these are the modules which SAP R/3 system have. Let us understand about the R/3 features. It supports 23 languages, more than 60 business modules, database and platform independent, graphically user interface, communication protocol, common database. Now new dimension products for CRM, that is customer relationship management, SMC supply chain management, APO advanced planner and optimizer, BI business intelligence, SME strategic enterprise management, BPC business process consolidation, FSCM financial supply chain management, PI process integration. Some industry solution is also provided for like apparels and footwear companies, for oil and gas, utilities, retail, automotive, or media. Uh, so these are the companies where ACP provides the industry solutions. Means ACP customize their requirements as per their data. So it is not only the standard software which can be maintained, but SAP also work on the development. Hmm. And SAP also provide the industry solutions where it can be customized as per the company Customized. requirement. Hmm. Hmm. So SAP installation process, which we have already completed in the last session. So after installation, once you log in into the system, there will be the part of navigation into the SAP function icon. Like if you see this types of icon, then this is required for create. So you can see all the icons has their all functions. So we will see each of the functions, each of the features that how we can use in SAP. This is we have completed the introduction part Yes, related sir. to the SAP system. Now, first we will start with SAP navigation. तो SAP के अंदर हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे, SAP के मॉड्यूल पाथ में कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं. So very first we will start with the login into the SAP system. So for that we have to double click on desktop icon. The login credential has been already given to you. Yes, sir. Just click on this, select the login.
So this client 800 will be, you don't have to change this because this is the ACP server configuration, and जी we are working on IDA server. It is related with the training. हम्म, जैसे आप लॉगिन कर लेते हो, देन यू विल गेट दिस फर्स्ट स्क्रीन. ये फर्स्ट स्क्रीन आपको आएगा. ये ACP मेन्यू आपको फर्स्ट स्क्रीन आएगा. जी ओके, अब ये ACP इजी एक्सेस मेन्यू को आप चेंज कर सकते हो. यहाँ से मेन्यू में जा करके ओनली यूज़र मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यूज़र लेवल पे जो जो वर्क्स दिए हैं, असाइन किए हैं, ओनली दैट वर्क विल बी देयर. इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन ACP इजी एक्सेस मेन्यू, देन आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो. लॉगिन करने के बाद आपको सिस्टम से लॉग आउट करना है. देन आप यहाँ पे सिस्टम में जाओगे. सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लॉग ऑफ. यस, देन आप इजीली सिस्टम से लॉग आउट कर सकते हो. हम्म, सपोज अगर आप ACP के अंदर मल्टीपल सेशन स्क्रीन पे काम कर रहे हो और आपको सारे स्क्रीन को एक साथ बंद करना है और इवन सिस्टम को लॉग ऑफ करना है, तो उसके लिए टी कोड है /NEX. /N EX. सपोज हम यहाँ पे हैं और हमें अगर कोई न्यू सेशन स्टार्ट करना है, देन Ctrl N प्रेस करेंगे. न्यू सेशन एक और हमारा स्टार्ट हो जाएगा मल्टीपल स्क्रीन के लिए. और यहाँ से हम दोनों ही सेशन को बंद करना चाहते हैं और सिस्टम को लॉग ऑफ करना चाहते हैं. तो ये हमारा टी कोड मेन्यू बार है. यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कोड इंसर्ट करते हो. तो /NEX एंटर करेंगे तो सिस्टम को लॉग आउट कर देगा और सेशन को क्लोज कर देगा. तो अभी आपके कोई भी सेशन ओपन नहीं रहेंगे. जितने भी सेशन आपके करंट स्क्रीन पे ओपन है, सारे सेशन को बंद कर देगा, प्लस सिस्टम को लॉग ऑफ भी कर देगा. सपोज ACP के किसी नेक्स्ट स्क्रीन से अगर हमें रिवर्स आना है, तो उसके लिए /N से आप उस करंट स्क्रीन को क्लोज करके रिवर्स आ सकते हो. पर्टिकुलर स्क्रीन को क्लोज करना है तो उसके लिए टी कोड है /N. अब ये ACP का मेन्यू पाथ है. यहाँ से हमें अकाउंटिंग के अंदर जाना है. सर आपने जैसे रिवर्स स्क्रीन बोला, जैसे हम टैली में स्केप करते हैं तो रिवर्स आ यस जाते हैं, यस ऐसे ही ना? यस यस. ठीक अगर टैली के ठीक अंदर हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो आपका स्क्रीन रिवर्स हो जाता है. इट इज सेम लाइक दैट. ठीक है. मेन्यू पाथ ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हो, एरो. सपोज आप किसी एक स्क्रीन पे आ गए और यहाँ से आपको बैक आना है, तो आपको 3 बटन्स मिलेंगे. ठीक है, एक तो आपको जी उसी स्क्रीन से वापस आने के लिए, तो आप F3 प्रेस करके बैक आ सकते हो, एक स्टेप पीछे जा सकते हो. ठीक है, अगर उसे क्लोज करना है वहाँ से, तो अगेन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉग ऑफ करने के लिए. Shift+F3 करोगे तो सिस्टम को लॉग ऑफ कर देगा. आप यहाँ से डायरेक्टली एरो डाउन करके आप इसे बंद कर सकते हो. मेन्यू पार्ट में जाने के लिए सपोज मुझे किसी लेजर का GL बैलेंस चेक करना है, मैं अकाउंट में जाऊंगा और यहाँ से जाने के बाद मैं अकाउंट्स के अंदर जाऊंगा और लेजर बैलेंस में यहाँ पे चेक करता हूँ. जैसे टैली के अंदर हम लोग लेजर रिपोर्ट चेक करते हैं, इट इज सेम लाइक दैट. सपोज यहाँ पे हमने कोई एक कंपनी कोड डाला. इस कंपनी कोड का फाइनेंशियल ईयर हमने चेक किया और यहाँ पे हमने
एक अकाउंट लेजर, जिस लेजर का रिपोर्ट्स हम चेक करना चाहते हैं वो अकाउंट्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सर्च करने के लिए आपको फील्ड्स अलग अलग मिल जाएंगे। सपोज मुझे कंपनी कोड यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कंपनी कोड डाल दूंगा। टाइम 1 करके मैंने यहाँ पे कंपनी कोड डाला है। अभी ये कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं ऑल, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ओनली ये मैं नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। जी जी। मुझे यहाँ पे जीएल सर्च करना है, मैंने स्टार किया एंड देन एंटर करेंगे तो 500 के रिकॉर्ड्स को मैंने हिट किया है। उसमें से जितने भी मेरे कंपनीज के लेजर रहेंगे इस कंपनी में वो आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट का मेरा जो जीएल है मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम F8 प्रेस करके एग्जीक्यूट कर लेंगे। यानी कि एसएपी के अंदर किसी भी रिपोर्ट को आपको एग्जीक्यूट करके देखना है तो उसका शॉर्टकट की F8 है। तो आप F8 प्रेस करोगे, देन आपका रिपोर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप लेजर रिपोर्ट चेक कर पाओगे। अब ये यहाँ से आपको वापस आना है, देन आप F3 प्रेस करोगे। F3 प्रेस करके दोबारा F3 प्रेस करके आप वापस आ सकते हो। यहाँ से अनकोलैप्स करना है तो एरो आप यूज़ करोगे, लेफ्ट एरो यूज़ करोगे तो ये अनकोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स करना है तो राइट एरो करोगे तो कोलैप्स हो जाएगा। सपोज हम जैसे इस SAP इजी एक्सेस मेन्यू में किसी भी स्क्रीन में हम अगर मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक तो उसका नेम मिल रहा है प्लस उसके साथ एक टेक्निकल्स नेम भी मिल रहा है आपको। लाइक हम यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाते हैं, मुझे जीएल पे काम करना है, मैं जीएल के ऊपर गया जनरल लेजर। मुझे यहाँ पे मास्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो मैं मास्टर रिकॉर्ड्स के अंदर गया, जीएल के अंदर गया, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग गया। अब FS00 क्या है हमारा, जीएल क्रिएट करने का काम करता है, एक टी कोड है। यानी कि अगर टैली में अगर हम बात करें कोई लेजर क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से जाके डायरेक्टली क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट कर लेते हैं जी। लेकिन एसएपी के अंदर अगर हमें कोई लेजर एक क्रिएट करना है तो हम यहाँ से या तो मेन्यू पाथ से जा सकते हैं या फिर यहाँ पे देखो आपको FS00 जो टी कोड दिख रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे टी कोड मेन्यू में डाल करके आप इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। आप इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका जीएल क्रिएट करने के लिए पाथ आ जाएगा। यहाँ से आप F3 प्रेस करके बैक आ सकते हो। अब यहाँ पे जो टेक्निकल्स नेम आपको दिख रहे हैं लाइक FS00 या फिर FSPO या फिर FSSO, ये कोड डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट करा सकते हो इस स्क्रीन को यहाँ पे डाल करके। सपोज मैंने यहाँ पे डाला टी कोड FS00 इंटर किया तो ये डायरेक्टली उस स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर गया। ठीक है। F3 प्रेस करके हम इसे बैक आ सकते हैं या फिर यहाँ से हम /n करके इसे इस स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि किसी एक स्क्रीन को बंद करके दूसरे स्क्रीन पे जाना है तो लाइक हमने यहाँ पे टी कोड डाला FS00 एंटर किया, जीएल क्रिएशन के अंदर आ गया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, जीएल को बंद करना है तो /n किया मैंने। और अगर आप कोई भी दोबारा टी कोड अगर आप यहाँ पे डाल देते हो लाइक FV50 आपने यहाँ पे डाला, एंटर किया तो इस स्क्रीन को क्लोज करके FV50 आपका स्टार्ट कर देगा डॉक्यूमेंट इंटर करने के लिए, जीएल पोस्ट करने के लिए। तो इसमें एक स्क्रीन को क्लोज करके दूसरे स्क्रीन को स्टार्ट भी कर सकते हो /n से। बट ध्यान रखना है कि अपने को /n करने के बाद उसके नेक्स्ट टी कोड आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है अदरवाइज स्लैश से आपका ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगा। सर। /n और F3 की ये दोनों बैक जाने के लिए इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए F3 से आप मेन्यू पाथ में आप जाते हो, जिस तरीके से आपने यहाँ पे मेन्यू पाथ में एक एक स्क्रीन के अंदर जा करके, ठीक है, आपने यहाँ से इंटर प्रेस किया। अब इंटर करने के बाद इस स्क्रीन से मुझे एक ही स्टेप वापस आना है तो मैं ठीक यहाँ है। पे F3 प्रेस करूंगा। सपोज मुझे इसको पूरा क्लोज करना है और SAP मेन्यू में आना है तो मैं यहाँ पे /n करूंगा। ठीक ठीक है। है। जी सर।
मतलब गेटवे कि पे आप, आ जाएगा ना हाँ MS करेक्ट, स्लैश एन से। हाँ। अभी अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो जितने भी आपने टी कोड्स यूज किए हैं रिसेंटली, वो टी कोड्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपके ट्रांजेक्शन कोड मेन्यू के अंदर। ये छोटा सा ड्रॉप डाउन रहेगा, इस पर क्लिक करके आप पुराना जो टी कोड्स यूज किए उसे आप रिपीट भी कर सकते हो। जी जी। अब यहाँ पे आपको एक एसीपी मेन्यू, दूसरा आपको एक फेवरेट मेन्यू दिख रहा है, ठीक है। अब एसीपी मेन्यू के अंदर हमने यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग के अंदर गए और हमने जो भी फंक्शनल को अनकोलैप्स करके रखा है वो चीज़ आपको रिसेंटली दिखेगा, ठीक है। अब इसके साथ ही एक टेक्निकल्स नेम भी दिख रहा है जिसको हम लोग टी कोड बोलते हैं। सपोज हम कई बार चाहते हैं कि टेक्निकल नेम नहीं चाहिए अपने को, तो इसके लिए सेटिंग है। इसके लिए आपको जाना होगा एक्स्ट्रास के अंदर जाना होगा, यहाँ से आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सपोज हम यहाँ पे टेक्निकल नेम्स को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, सो वी विल अनचेक, जिससे ओके करते हैं, टेक्निकल्स नेम आपके निकल चुके हैं। सो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जीएल, डॉक्यूमेंट एंट्री, सो यू कैन सी द टेक्निकल नेम हैज डिसअपीयर्ड। अगर हमें टेक्निकल्स नेम चाहिए देन अगेन वी विल हैव टू गो टू एक्स्ट्रा सेटिंग, टिक कर देंगे। टिक कर देंगे, ओके करते हैं, यू कैन सी, ओके। जी सर। सपोज हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं फेवरेट लिस्ट एंड ऑफ द मेन्यू, अगर हम इसे अनचेक कर देंगे तो ये टॉप ऑफ द मेन्यू चला जाएगा। तो फर्स्ट फेवरेट एंड देन सेकेंड एसएपी मेन्यू। तो एक्स्ट्रास, सेटिंग, सपोज यहाँ पे हम नहीं करना चाहते, डू नॉट डिस्प्ले मेन्यू ओनली डिस्प्ले फेवरेट्स, अगर इसको चेक कर देंगे तो जो भी आप फेवरेट्स के अंदर मेन्यू डाले हो वही चीज़ें दिखेगी, एसीपी मेन्यू आपका नहीं दिखेगा। लाइक आपने जो भी ट्रांजेक्शन कोड फेवरेट में बना के रखे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। तो सेटिंग के अंदर जाकर के हम इसे चेंज कर लेंगे। सपोज हम मेन्यू चाहते हैं, तो हम फेवरेट में किसी भी मेन्यू को किस तरीके से ऐड करेंगे ये चीज़ देखते हैं। जी। तो हमें या तो ट्रांजेक्शन कोड या फिर कोई फाइल या फिर कोई वेबसाइट, ये हमें फेवरेट में डालना पड़ सकता है। फेवरेट में डालने से आपको क्या होगा कि आप डायरेक्टली उस स्क्रीन से इजीली जंप कर पाओगे, आपको लॉन्ग वे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सपोज मैं यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर जाता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मुझे एक जीएल क्रिएट करना है, तो मैं जनरल लेजर के अंदर गया। अब मुझे यहाँ पे एक मास्टर रिकॉर्ड करना है जीएल के अंदर, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्या, तो मैं FS00 को मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने फेवरेट मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपको एक ऐड ऑप्शन टू मिल जाएगा फेवरेट्स। ऐड टू फेवरेट। जी। तो आपने ऐड टू फेवरेट कर दिया। सपोज आपका ये फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है, आप इसे चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। एसीपी मेन्यू को मैं अनक्लब्स कर देता हूँ, फेवरेट्स के अंदर आकर के देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसको सर फेवरेट लिस्ट से अगर हटाना है हमें, हाँ, तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम डिलीट डिलीट फेवरेट। फेवरेट, तो ये फेवरेट से डिलीट हो जाएगा। ठीक है। सपोज यहाँ पे हम कोई एक फोल्डर बनाना चाहते हैं अपने नाम से, देन हम यहाँ पे इजीली यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप वो फोल्डर क्रिएट कर सकते हो फेवरेट्स को सेलेक्ट करके, यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो या फिर आप डिलीट भी कर सकते हो। एक यहाँ पे भी आपको मेन्यू मिलेगा,
ऐड करके, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, सपोज कोई न्यू फोल्डर करना चाहते हैं तो हम न्यू फोल्डर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे फोल्डर का हम नाम डालेंगे, APCT टी कोड्स। तो एक न्यू फोल्डर हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम चाहते हैं अपने जो भी फेवरेट्स ऐड करेंगे वो इसके अंदर हम मूव करना चाहेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे एक तो या तो मेन्यू पाथ से जाकर के भी हम लोग डायरेक्टली ऐड करा सकते हैं, या फिर जी। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, कोई आप इंसर्ट करना चाहते हो ट्रांजेक्शन तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो। अब आपको ट्रांजेक्शन कोड डालने पड़ेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ FS00, ऐड हो गया। अब जी। इसके अंदर मुझे एक चीज़ और डालना है, FV50, FV50, राइट क्लिक, इंसर्ट ट्रांजेक्शन, फोल्डर पे क्लिक हो गया तो FV50 ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड करा सकते हैं, या फिर हम मेन्यू पाथ में भी जाकर के उसे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस करने हैं तो इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ फेवरेट्स में। राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने के बाद उसे आप मूव भी कर सकते हो जिधर आप उसे शिफ्ट करना चाहते हो। सपोज इसे हम मूव करना चाहते हैं तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, मूव कर जाएगा। सपोज कोई वेबसाइट है, फोल्डर को मूव करना है, डायरेक्टली आप फोल्डर भी मूव करा सकते हो। ठीक है। तो इस ठीक है तरीके सर। से आप एक फेवरेट्स क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर एक फोल्डर बना सकते हो, प्लस उसके अंदर आप अपने टी कोड्स को ऐड कर सकते हो। अब फेवरेट में कोई फाइल्स आपको ऐड करनी है जो डेली बेसिस पे आपकी फाइल यूज होती है, या कोई वेबसाइट ऐड करना है, तो अगेन आप फेवरेट में जाओगे। फेवरेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड अदर ऑब्जेक्ट्स लिया, इसमें वेब एड्रेस और फाइल का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो आप, उस फाइल का आप टेक्स्ट रख सकते हो। सपोज मैं GST वेबसाइट रखना चाहता हूँ, वेब एड्रेस www.gst.gov.in, ठीक है। जी। कंटिन्यू कर देंगे। ये ऐड हो चुका है। अब इसे अगर ओपन करना है तो डायरेक्टली हम लोग क्लिक करके इसे ओपन करा सकते हैं, अलाउ करेंगे। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट रहेगा उसके बेसिस पे इसे ओपन कर दें। जी। आपको बार बार अदर ब्राउज़र्स पे जाके उसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप वहाँ से स्टार्ट जी। कर सकते हो फेवरेट से। सपोज कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जो आप ऐड करना चाहते हो, अगेन आप फेवरेट में जाओगे, ऐड अदर ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट वेब और फाइल,
सपोज यहाँ पे टी कोड फाइल्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके सिस्टम के अंदर फाइल रहेगी उस फाइल को आप सेलेक्ट कर दो। इट इज जस्ट लाइक ए हाइपर लिंक। जी जी। सपोज हमने कोई भी फाइल सेलेक्ट किया ये, और यहाँ से हमने इसे कंटिन्यू कर दिया, तो ये फाइल हमारी ऐड हो गई है। इसे ओपन करना है, डायरेक्टली हम इसे क्लिक करके ओपन करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो भी आपकी इम्पोर्टेंट फाइल है उसको आप यहाँ से रन करा सकते हो, उसे ओपन कर सकते हो फाइल को। सपोज हम यहाँ पे डायरेक्टली डेस्कटॉप पे किसी स्क्रीन का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सपोज हम जीएल क्रिएशन स्क्रीन डायरेक्टली डेस्कटॉप पे चाहते हैं, तो मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, FS00, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। किसी भी स्क्रीन को आपको डेस्कटॉप पे बनाना है तो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। यस, अलाउ कर दो। अब इसे हम ACP को लॉग ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे एक ACP का शॉर्टकट स्क्रीन क्रिएट हो चुका है। अब इसको जैसे आप ओपन करोगे, आपसे अगेन यूजर आईडी पासवर्ड आपसे पूछेगा। ACP विंडोज में हमें ओपन करना है इसे। यस, अलाउ, पासवर्ड,
मल्टीपल स्क्रीन एक बार क्लोज कर लेते हैं सब। ओके, यस। तो देखो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, बट ये ओनली जीएल क्रिएशन के लिए ही ये स्क्रीन यूज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ से हम कोई जीएल क्रिएट करना चाहते हैं तो जीएल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जो जीएल आपके पास ऑलरेडी है उसको कॉपी मार्क करके दूसरा कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हो। सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैं इसे टेलीफोन बिल एक करना चाहता हूँ। सेव कर लेंगे। वन जीएल इज क्रिएटेड। अब ये जीएल क्रिएट कैसे करते हैं, कंपनी करते हैं, ये चीज़ें हम लोग अभी आगे सीखेंगे। बट जी अभी के लिए ये जो शॉर्टकट्स हमने डेस्कटॉप पे बनाया उससे हम लोग डायरेक्टली रिडायरेक्ट करके वर्क कैसे करेंगे ये चीज़ मैंने बताया। जी। सपोज हम मल्टीपल सेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल सेशन पे काम कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास एक सेशन स्क्रीन स्टार्ट है, यहाँ पे न्यू सेशन करने के लिए इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रोल एन करके भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी नया सेशन एक बना सकते हो आप। अब देखोगे ये दो सेशन स्क्रीन स्टार्ट हो चुका है। ऑल टैप करके दोनों स्क्रीन पे आप जिधर भी स्विच करना है उस स्क्रीन पे जा सकते हो। कंट्रोल एन करके अगर कोई नया स्क्रीन बनाना है तो आप अगेन क्रिएट कर सकते हो उसमें। ओके, तो हमने नेविगेशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें लॉगिन करना, लॉग ऑफ करना, मेन्यू पाथ को नेविगेट करना, टी कोड्स के थ्रू डायरेक्टली स्क्रीन पे जाना, फेवरेट्स क्रिएट करना, फाइल्स एंड टी कोड्स क्रिएट करना, शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी मॉडल्स का क्रिएट करना, टेक्निकल्स नेम को देखना एंड अदर डिटेल्स, सेटिंग कैसे करना है, न्यू सेशन क्रिएट करना, करंट सेशन को बंद करना, पूरे सेशन को एंड करना। ठीक है, एसीपी इंस्टॉलेशन हमने ऑलरेडी बता दिया लास्ट सेशन में आपको, एंड कमांड फील्ड के थ्रू डायरेक्टली आपको जाना, ये भी चीज़ें मैंने बता दी। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एसीपी नेविगेशन। तो एसीपी नेविगेशन में ये सारी चीज़ें अभी आपकी कवर हो चुकी है। अब इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नाउ ठीक है नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हाउ यू कैन डिफाइन योर कंपनी, how you can define your company code, how you can assign your company code to company and define business area.
सो कंपनी डिफाइन करना, लाइक कंपनी का इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। टैली के सिस्टम से समझे तो हम एक कंपनी क्रिएट करना, ठीक है। हालांकि टैली में आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल कोड उसके साथ असाइन नहीं कर सकते। एसएपी के अंदर जब आप एक कंपनी डिफाइन करते हो तो उससे रिलेटेड आपको एक कंपनी कोड भी डिफाइन करना पड़ता है। और जब आप एक कंपनी कोड डिफाइन करोगे तो वो आपको असाइन करना होगा आपके पर्टिकुलर कंपनी कोड के साथ। डिफाइंड बिजनेस एरिया, एक कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकता है, तो उसके लिए बिजनेस एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए हम ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे डिफाइन। एसएपी के अंदर जो भी डिफाइन करना इज कॉल्ड एसएपी इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि ये एक इंड यूजर लेवल पे नहीं होता है, ये कंसल्टेंट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देता है। लाइक टैली में आप नॉर्मली इंट्रीज कर लेते हो क्योंकि आपके ऑलरेडी प्री डिफाइंड सारे सिस्टम सेट करके रखा रहता है। तो दैट इज इंड यूजर लेवल वर्क, दैट इज नॉट अ इम्प्लीमेंटेशन वर्क। बट एसीपी के अंदर आपको हर एक लेयर्स के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ही वो चीज़ें आप उस पर काम कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी डिफाइन करने के लिए देखेंगे कैसे डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए इसमें टी कोड क्या है, OX15 से डायरेक्टली आप जा सकते हो। इसका मैनुअल पाथ भी है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे जाएंगे। अगर आपको कोड डिफाइन करना है तो OX02 करोगे तो डायरेक्टली चले जाओगे। असाइन करना है तो OX16, डिफाइन बिजनेस एरिया OX03। तो सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक मेन्यू पाथ है। लाइक अगर टैली में अगर आपको कोई भी फीचर्स एक्टिवेट करना है, देयर इज अ वन की दैट इज F11, राइट। सो जी। F11 में जाकर के आप फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हो, या दूसरा अगर आपको कोई फीचर्स करना है तो F12। तो F11 F12 ये दो फीचर से आप टैली के अंदर कोई भी चीज़ें सेटिंग्स चेंज कर पाते हो। एसीपी के अंदर ओनली वन टी कोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड SPRO। SPRO, स्पैरो, ये एक इम्प्लीमेंटेशन टी कोड है। यहाँ पे ही जाके आपको कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होगी। यहाँ से हम ACP रेफरेंस IMG में जाएंगे। इसमें आप F5 प्रेस करके भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ से आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। यहाँ से डेफिनेशन में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइन कंपनी। अब ये सिस्टम जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी टाइम पे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अदर यूज़र भी कोई प्रैक्टिस कर रहा हो। तो अगर आपको कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है तो वन यूज़र कैन इम्प्लीमेंट इन वन स्क्रीन वन टाइम। यानी कि एक स्क्रीन पे कोई एक ही यूज़र इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे ये यूज़र ऑलरेडी इस स्क्रीन पे है तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, बट मैं फिर भी काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, या तो मैं इनसे परमिशन लूँगा कि भाई आप यहाँ से बाहर हो जाओ, मुझे काम करना है। और अगर ये नहीं परमिशन, अभी ये कौन से यूज़र है अपने को तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल पता नहीं है, तो हमारे पास जी। एक सिस्टम है कि हम इसे डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, SM04 ये टी कोड है, आप नोट करके रख लेना। अब SM04 के अंदर जितने भी इस सर्वर पे लॉग इन करके प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, सभी की डिटेल्स दिखेंगे। यहाँ पे कौन से यूज़र हमें परेशान कर रहे हैं, ACP प्राइमर्स 684। तो 684 ये है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है, आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इस स्क्रीन पे है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इंड सेशन कर दोगे। जैसे आपने इंड सेशन किया, अभी आपको यहाँ पे अलाउ कर देगा एंटर करने के लिए। बैक आओ, अगेन आप डिफाइन कंपनी में जाओगे तो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, डायरेक्टली एंट्री अलाउ कर देगा। अब यहाँ पे हम एक न्यू एंट्री करना चाहते हैं, तो न्यू एंट्री करने के लिए शॉर्टकट की F5 है। अब यहाँ पे आपको पहले कंपनी कोड डिफाइन करने पड़ेंगे।
तो मैं यहाँ पे डालता हूँ MTNL MTNL। देखो, जब भी आप कंपनी कोड डिफाइन करोगे वो ध्यान रखना है कि आपका उसका जो लेंथ है या तो आप नंबर्स में रख सकते हो या फिर टेक्स्ट में रख सकते हो, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 4। 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 एग्जैक्टली हो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे हमने कंपनी नेम डाल दिया MTNL1। लिमिटेड कर दिया हमने। यहाँ पे सेकेंड कंपनी अगर आपको डिफाइन करना है तो आप डाल सकते हो MTNL ग्रुप कंपनी। यहाँ पे आपका स्ट्रीट डिटेल आ जाएगा, जो भी आप एड्रेस डिफाइन करना चाहते हो। यहाँ पे आपका पोस्ट बॉक्स, पोस्टल कोड, सिटी, यहाँ पे आपको कंट्री डिफाइन करना होगा, लैंग्वेज। लैंग्वेज आप यहाँ से जो मल्टीपल लैंग्वेज लेना चाहते हो आप सेलेक्ट करके ले सकते हो, बट यू कैन कीप EN फॉर इंग्लिश। कंट्री INR, सॉरी कंट्री बोल रहे हैं, करेंसी। तो इसको हमने जैसे इंसर्ट कर दिया इन्फॉर्मेशन, इंसर्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये सब एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से आपको सेव कर लेना। कंटिन्यू करोगे तो आपका ये डेटा सेव हो चुका है। तो हमने कंपनी डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, कंपनी कोड डिफाइन करना। अच्छा, एक तो ये मैनुअल पाथ ये है, और डायरेक्टली अगर हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो OX15 करेंगे तो भी हम लोग उस स्क्रीन पे आ सकते हैं। डायरेक्टली स्क्रीन पे भी हम लोग टी कोड से आ सकते हैं, अदरवाइज SPRO। So this is how we can define the company. Now how we can define company code? तो कंपनी कोड डिफाइन करने के लिए OX02 या फिर आप यहाँ से SPRO SAP रेफरेंस IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडिट कॉपी डिलीट एंड चेक कंपनी कोड। यहाँ से एडिट कंपनी कोड डेटा, यहाँ पे न्यू एंट्री। तो हम कंपनी कोड क्या इनिशियल करना चाहते हैं, MTNL। ठीक है, ये MTNL ऑलरेडी किसी के साथ असाइन है, तो हम यहाँ पे MT
01 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये MT01 हम MTNL कंपनी के लिए यूज करना चाहते हैं, ये इनिशियल। हमने कंपनी क्रिएट करने के टाइम पे वहां दिया था MTNL। MTNL, हाँ, दैट इज हमने क्या डाला था, वो कोड हमारा नहीं है, वो हमारा कंपनी का ग्रुपिंग नेम है, दैट इज MTNL, विच विल बी असाइन विद द कोड MT01। ठीक है। MTNL कोड फॉर MT01 ऐसा करके हमने डाल दिया। You can contact with the Yogesh and he will let you know. Okay. हाँ, सिटी अंधेरी मुंबई, कंट्री हमने इंडिया, करेंसी INR, लैंग्वेज EN, और हमने यहाँ से सेव किया। जैसे हम सेव करेंगे, अब इससे रिलेटेड क्रेडेंशियल्स अपने से पूछेगा, मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम ये जो क्रिएट कर रहे हैं MT01, अब ये क्या हमारा एक कंपनी है, कंपनी का नेम क्या हमने डाला था, MTNL, MTN लिमिटेड लिखा था। जी। फिर हमने MTNL ग्रुप कंपनी। अब ये कंपनी हमारा सर्च कैसे होना चाहिए, तो MTNL के नाम से सर्च हो जाए, या MT01 जो हमारा कंपनी कोड है उससे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अगेन एड्रेस डिफाइन करना है, यहाँ पे पोस्टल कोड डालना है, यहाँ पे अंधेरी मुंबई, यहाँ पे मैंने कंट्री डिफाइन कर दिया लाइक IN, रीजन यहाँ पे स्टेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट SAP स्टैंडर्ड सभी स्टेट्स दिए हुए हैं डिफाइन, आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हो सभी स्टेट्स को, और वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो उसके कोड। ठीक है, सो लाइक पंजाब अगर करना है आपको, तो उसका कोड क्या है, 19। तो मुझे यहाँ पे 13 करना है, मैं महाराष्ट्र ले रहा हूँ। पोस्ट बॉक्स अंधेरी, पोस्टल कोड 40096 में डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कम्युनिकेशंस डिटेल आप डाल सकते हो, लाइक टेलीफोन नंबर 0224000, मैंने 6000 एक इंसर्ट कर दिया, एक्सटेंशन मुझे देना है तो 122, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड, आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन क्या है, सपोज ईमेल से करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन ईमेल मार्क कर सकते हो। अदर भी कम्युनिकेशंस डिटेल है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप और भी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड है आप वो यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक फैक्स नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, मल्टीपल ईमेल आईडी है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो। और ये इन्फॉर्मेशन आपका ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करके आप डिटेल प्रीव्यू करके देख सकते हो। आप सपोज कंपनी के इन्फॉर्मेशन को प्रीव्यू करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करोगे, कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्रीव्यू हो जाएगी।
आप इसे कंटिन्यू करते हो यहाँ पे तो डायरेक्टली आपकी इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो जाएगी और ये सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो ये कस्टमाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट जो कंसल्टेंट है उसके पास चली जाती है और कंसल्टेंट इस चीज़ को अप्रूव कर देता है। तो अभी यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप कस्टमाइजेशन करोगे वो अप्रूव्ड हो जाएगा, बिकॉज जो कस्टमाइजेशन एक पर्टिकुलर किसी लॉगिन यूज़र से असाइन नहीं किया हुआ है। अगर किसी लॉगिन यूज़र से असाइन करेंगे तो फिर वो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमने कंपनी कोड भी क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, असाइन करना है। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी का टी कोड है OS 16। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इसी स्क्रीन से /n OX 16 करके डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे। कंपनी कोड जो हमने डाला है क्या, MT01 एंटर करेंगे और इसमें हमारा कंपनी क्या है, MTNL। ठीक है, MTNL लिमिटेड करके हमने क्रिएट किया था ये। अब ये हमारा कंपनी कोड MTNL कंपनी के साथ असाइन हो चुका है। अब इसे हम क्या कर देंगे, सेव कर लेंगे। जैसे हम इसे सेव करेंगे ये रिक्वेस्ट एक जाएगा, अगेन ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा, देन योर डेटा इज सेव। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमने बिजनेस एरिया डिफाइन करना है। हमने जो कंपनी कोड बनाया उसके अंदर मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो वो अगर हम इसमें डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे। तो उसका कोड है OX03, या फिर आप मैनुअल पाथ से भी जा सकते हो, SPRO एंटर। SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो कंपनी कोड को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट में गए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाकर के हमने यहाँ पे असाइन किया था। हमने डायरेक्टली टी कोड्स डाल करके किए थे, मैनुअल पाथ ये है इसका। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना है क्या, बिजनेस एरिया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन बिजनेस एरिया आपको मिलेगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दो। तो आप मल्टीपल बिजनेस एरिया डिफाइन कर सकते हो। सपोज MTP मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, MTNL पुणे, MTA कर रहा हूँ, MTNL अंधेरी, MTG कर रहा हूँ, MTNL घाटकोपर। ये अपने बिजनेस के जितने भी मल्टीपल बिजनेस एरिया है हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे ये हमारा बिजनेस एरिया भी सेव हो जाएगा। So is it clear? Yes, sir. So this is how we can define company and how we can define company code, how we can assign the define company code to the company code. Okay, And business area. and business area. Hmm. So I think this is enough for today's session. You practice on this, and next session we will start with the more things, है ना? Okay, sir. Okay. जी सर। While practice अगर कोई भी query रहती है, so you can drop me the mail or you can text me also. ओके सर। ओके। Thanks for joining the session. Have a nice थैंक यू सर।